Hello and a very good morning, dear. As we are doing our chapter Algebraic Expressions, today we are starting our addition of another type of questions. As in this type, there are three expressions given, and in each expression, there are not same variables and constants are given. As we can say, in first expression, the terms are three, means one is of p square q square, another is of pq, and the third one is constant. And in second expression, there is one term of p square q square, the another is constant, means the pq term is missing, and the third one is 6p square q square and 7pq, means the third constant term is missing here. So how to solve these type of questions, means how to solve the three expressions at single time. So to solve these type of questions, there is a little bit different method. First we will solve the equations, means we will write the equations like terms with each other, means like terms at same place and unlike terms at other. As we can say, the p square q square term is present in all the three expressions. So we will write this term first, 3p square q square, and in second there is minus 10p square q square, and third expression, the p square q square term is 6p square q square. The second term of pq is, in first expression it is minus 4pq, and in second there is no term present, so we can write here plus or minus whatever, we can write 0pq, and in third it is minus 7pq. In first expression the constant term is plus 17, in second expression the constant term is minus 15, in third expression there is no constant, so we can write 0. Now we can solve this as we have done earlier. That first we solve the terms of same sign, means p square q square, means variables are same and the constant is plus 6 and plus 3. Plus 6 and plus 3, it will become plus 9, and the different sign term is minus 10. So how can we solve this? Plus 9 and minus 10, the sign will become of larger value, means negative sign, and we subtract the small value from the capital one, means minus 10 plus 9, the remainder will be minus 1, and the variable will be same p square q square. Same in the term of pq, the first is minus 4, second is 0, and the third one is 7, means minus 7. So here is 0, no value, means positive term has 0 value, so we don't count it, and the other two terms are negative, so we will apply the sign negative, means capital value sign, and the signs are same, so we will add both of these terms. 7 plus 4, it will become 11pq, and in third place plus 17 minus 15 and 0 will not count. Plus 17 and minus 15, sign will be of capital value, means plus sign will be there, positive sign. Plus 17 and minus 15, we will subtract the small value from the capital one. 17 minus 15, we will be get 2 as answer, means plus 2. So it's the solution. Now for students who are of Hindi medium, as 3p square q square, सेकेंड टर्म है हमारे पास माइनस 10p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, थर्ड है 6p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर. तो फर्स्ट हमने क्या किया, तीनों एक्सप्रेशन में से जो सेम वेरिएबल की टर्म्स हैं उन्हें एक जगह पे नोट किया, और जो अनदर वेरिएबल की टर्म है मीन्स पी क्यू की टर्म है जो तीनों में, वो हमने एक जगह पे नोट की, और जो कांस्टेंट है मीन्स जो नंबर है डायरेक्ट जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हमने एक कॉलम में नोट किया. उसके बाद हमने सॉल्व किया. माइनस
10 पी क्यू, और पॉजिटिव टर्म्स हैं दोनों, प्लस हैं तो हमने इनको ऐड कर लिया। 6 एंड 3 क्या हो गया 9 एंड माइनस 10। वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल सेम आ जाएगा, प्लस 9 एंड माइनस 10। तो रिमाइंडर क्या आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, और जो बड़ी वैल्यू में से हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 9, आंसर क्या आएगा -1 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है -4 पी क्यू, 0 पी क्यू एंड -7 पी क्यू। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, मीन ज़ीरो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। -4 एंड -11, साइन सेम है, साइन हम कैपिटल वैल्यू का लगाएंगे तो माइनस साइन आएगा। जब साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को ऐड, 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, तो आंसर हो जाएगा -11 पी क्यू। सेम थर्ड स्टेप में, ये तो हम सिंपल मैथ्स में करते हैं कि +17 एंड -15, तो आंसर आएगा +2। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि जिनको ये क्वेश्चन इजी लग रहा है वो इसको स्पीड इंक्रीज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। उनको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और हमारे लिए। सो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करना। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड देयर आर 4 एक्सप्रेशंस। यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस गिवन है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, सेम उसी तरह सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। 4ab, सेकंड में ab की टर्म है -7ab, और थर्ड क्वेश्चन में -3ab, और फोर्थ में अगर हम देखें तो ab की टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे 0ab। सेकंड में जो a की टर्म है वो -3a, सॉरी फर्स्ट में -3a, सेकंड में है +6a, थर्ड में a की कोई टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे 0a, एंड फोर्थ में है +5a। जो नेक्स्ट टर्म है वो है b की, फर्स्ट में b की कोई टर्म नहीं है, हम लिखेंगे +0b, सेकंड में भी b की कोई टर्म नहीं है, सेम 0b, थर्ड में b की टर्म है +5b, और फोर्थ में b की टर्म है -2b। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया, फर्स्ट हम पॉजिटिव टर्म्स को और नेगेटिव टर्म्स को एक साथ सोल्व कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 4ab प्लस है मींस +4, -7 एंड -3, साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगी और साइन आएगा नेगेटिव, 7 एंड 3 हो जाएगा 10, +4 एंड -10, +4 ये -7 एंड -3 हो गया -10। तो इससे क्या हो, कैसे सोल्व करेंगे, +4 एंड -10, साइन आएगा कैपिटल वैल्यू का और कैपिटल में से स्मॉल वैल्यू माइनस, तो आएगा -6ab। नेक्स्ट स्टेप -3 +6 +5 एंड 0, वी कैन राइट +0। सो +6 एंड +5 ये हो जाएगा प्लस का 11 एंड -3, साइन आएगा कैपिटल वैल्यू +11 एंड -3, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो साइन यहाँ पे आएगा प्लस का 8a। नेक्स्ट स्टेप में 0b नो प्रॉब्लम, +5b एंड -2b, +5 एंड -2, साइन कैपिटल वैल्यू का तो यहाँ पे आएगा +5 एंड -2, तो रिजल्टेंट क्या होगा 3, मीन्स स्मॉल वैल्यू को कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करना है और कैपिटल वैल्यू का साइन, तो आ जाएगा +3 एंड वेरिएबल आएगा सेम। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन रखे हैं, ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन है 6a² + 5b² 3b² - 5c 7a² + 4c 3b² + 3c, means 4 expressions are there for you. You have to addition and subtraction, means solve these 4 expressions and find out a single expression. मीन्स 4 एक्सप्रेशन को सोल्व करके आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है इनको ऐड करके। सेम फोर्थ क्वेश्चन में है 5p² p³ q² + 7pq, सेकंड एक्सप्रेशन है 7p³ q² - 3pq,
Third expression is 17p³ minus 3p³ q square. मीन्स 3 एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है. होप यू ऑल अंडरस्टूड. अगर किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe the channel. Goodbye and best of luck.